M215 से कोई हैंड रेज किए हुए हैं, अपना नाम बताएं। और कैप्टन राहुल राय क्या कहना चाह रहे हैं? टॉपिक पर ही कंसंट्रेट करिएगा। अपने आप को अनम्यूट कर लें आप लोग। सुनील जी, मैं राहुल राय बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं राहुल राय बोल रहा हूँ। मेरा सर व्यू ये है कि अगर हम दोबारा बैलेट पेपर की तरफ जाएंगे तो जैसे शैलेश सर ने कहा कि एक तो हमारा इन्वायरमेंट का भी इशू होगा, हम बहुत ज्यादा हमको पेपर्स यूज करने पड़ेंगे, या फिर लेकिन हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो जो ये कह रहे हैं कि हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। मुझे क्या लगता है इसमें, अगर जिस तरह से वीवीपैट में ये प्रिंट इनको शो करते हैं, अगर इसकी प्रिंट वर्जन ये बनाएंगे तो उसमें हर जितने भी इनके कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए एक नॉर्मल सा क्यूआर कोड डिफाइन कर दें, बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। अगर एक नॉर्मल सा क्यूआर कोड करेंगे, उनका बाद में क्यूआर कोड से स्कैन करके बहुत जल्दी बताया जा सकता है कि कितने कैंडिडेट ने कितना वोट दिया, और उसको मिलान भी किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, टेक्निकल इशू इतना बड़ा नहीं है जितना लोग क्रिएट कर रहे हैं कि इसको काउंट करने में बहुत समय लगेगा और इससे इनका ज्यादा वेस्ट मनी वेस्ट भी होगा और इनका टाइम भी खराब होगा। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई इशू है। अगर इस तरह से कुछ किया जाए तो ये बहुत छोटा सा टेक्निकल इशू है। जी शिवानंद जी। जी धन्यवाद। सैमसंग SM समथिंग जो है आपका, ये आप क्या बोलना चाह रहे हैं? प्लीज अपनी बात रखें। आशीष नारायण जी प्लीज। मेरा छोटा सा सबमिशन है that EVM, which I think that EVM machine is more reliable and less vulnerable than ballot system. It might be developed further. There is no question, which expert Mr. Paul has already said. But I firmly believe that EVM system cannot be replaced by ballot system. This is my opinion. Okay, thank you. जी कुलदीप जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मोहम्मद हनीफ सर से एक चीज ये जानना चाह रहा था सर। आंध्र प्रदेश के मैंने आरटीआई के बहुत सारे जजमेंट पढ़े हैं, तो इन शॉर्ट सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ईवीएम को लेके वहां पे आंध्र प्रदेश, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली मोहम्मद हनीफ सर, माय क्वेश्चन इज टू यू मेनली, since you are from Andhra Pradesh, and I have studied a lot of judgments of from Andhra Pradesh regarding RTI, and I just wants to know what is the situation of on the ground level, whatever you have seen about such type of Zoom meetings or such type of at the ground level, what type of situation is there in the Andhra Pradesh? Because we don't have very much communications with them because of the language issue. Mohammed Hanif sir, are you getting my voice, sir? Yeah, you are to me, Mohammedan, if you. Hello? Yes, sir. Yes, sir. I'm asking to you only, sir. What is the exact, what is the situation, overall situation regarding the EVM and RTI in Andhra Pradesh at the ground level? Are the Pardon? people well aware about the RTI and EVM about that in your state, sir? Because Pardon, from the High Court, I have studied a lot of decisions. pardon, sir. Pardon, sir. I am from Muhammad Hanif from Mangalore, not from Hyderabad, Andhra Pradesh. So, okay, na, sir. Okay. So you are basically from Andhra Pradesh now? No, no, no. I am from Mangalore. I am a native of Mangalore, Karnataka. Okay, okay. So that's also, sir, that is also nice. That's from Karnataka. That is extreme south of our India. My Yeah. question is, sir, what is the situation of people awareness in the Karnataka regarding EVM and RTI? Yeah, what exactly the other states having the same thing in Karnataka, but much curiosity on EVM and VVPAT, not much in from Mangalore and coastal side, but it much more discussion in the other Bangalore side and regions. Here there is no much discussion on the coastal sides. Okay, and sir, what about the Zoom meetings and all that in that Kannada, that Karnataka language? Is it available there or not available there? No, very, very less meetings going on in Zoom in Kannada, but in English, in national level meetings, there are participants. Last time, PUCL had conducted a meeting. There were participants. Sir, I'm quite happy that we have got a person from South, because most of the time it happens that we don't have
peoples from the south because of the language issue. है ना? Yeah, please, शिवानंद सर, please continue, sir. जी जी धन्यवाद। हमारे बीच में विजय सिंह पालीवाल जी हैं। विजय सिंह पालीवाल जी, स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद कार्यक्रम में आप दिखे। आज आपके मन का टॉपिक है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं प्लीज। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ईवीएम का इशू है। ईवीएम पर पहले भी आपने अपने विचार रखे हुए हैं, और ईवीएम के परिप्रेक्ष्य में जो वीवीपैट की बात आती है कि ये जो पेपर ऑडिट ट्रेल है, ये हाँ हाँ। फिजिकली अवेलेबल किया जाए, और इसका एक अलग से सिस्टम बनाया जाए काउंटिंग का, क्योंकि शिवानंद जी, जो ईवीएम है देखा जाए तो जो बैलेट से जो होता था पहले, जो मतदान होता था, तो कम से कम वो उसमें ये था कि आपके पास में फिजिकल, आपके पास में ये होता था कि आपके पास में कितने वोट पड़े और उसको आप कभी भी जांच कर लो। अभी ईवीएम का कम से कम ये तो है कि ईवीएम फास्ट हो रहा है, लेकिन आप अगर सोचिए कि ईवीएम का जो डाटा है, इतने टाइम में भी अगर ईवीएम का डाटा को अगर ये सार्वजनिक नहीं करते हैं और इतना टाइम ले लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत डेंजरस हो गया। और अगर ईवीएम के डाटा के जो हो गया, जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज इतना फ्लक्चुएट होके इतना ज्यादा दिखा दे, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। हाँ शिवानंद जी। जी बिल्कुल सही हेलो। कहा आपने। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन इसमें डिबेट इसमें कंटिन्यू है कि ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें इसको लेकर के उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने चुनाव आयोग और गवर्नमेंट पर विश्वास जताया। इस विषय पर आपका क्या कहना है। अगर आप कल कुरैशी जी का काफी बड़ा उसका बयान भी आया है, और उसमें अगर आप देखें तो कुरैशी जी जो पहले जो चुनाव आयुक्त रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर ये जो ईवीएम, ये तो भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक अगर काम में लिया तो फास्ट करने के लिए लिया, और दूसरा इसके अंदर में कि कम से कम ये होना चाहिए कि संतुष्टि हो लोगों को, और ये सिक्योरिटी हो कि हमारा जो वोट है वो जिसको हम चाह रहे हैं उसी के पास जा रहा है। ये तो हो ही, मतदान का मतलब ही है कि आप मत मत दे रहे हैं, आपका मत क्या है, आपका व्यूज क्या है, तो आपका व्यूज वो जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए मतगणना के अंदर में। तो मतदान का जो है अगर वो पैटर्न है और वो नहीं होके अगर मैनेज हो जाए, तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी। अगर ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये अगर कुरैशी जी का आप देखेंगे तो कुरैशी जी तो बोल रहे हैं कि ये तो अगर जैसे ईवीएम है, ईवीएम आने के बाद तो जो वीवीपैट भी होगी, चलो उससे कनेक्टेड है, लेकिन ये जो डाटाज हैं कि लास्ट अगर सपोज करिए कि अगर बूथ के अंदर में 5:30 बजे घुस गया, अगर वो 11 बजे भी होता है, तो 11 बजे का जो डाटा है दैट शुड बी, तो वो 99.99% वो फाइनल डेटा है, वो तो कम से कम 11 बजे तक तो आ जाना चाहिए पूरा पूरा का पूरा डाटा कि कितनी वोटिंग हुई, कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है। हाँ शिवानंद जी। जी धन्यवाद। हमारे बीच में ओके, ईश्वर राज जी हैं। ईश्वर राज जी को यहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे, वो अपनी बात रखें ईवीएम इशू पर। ईश्वर राज जी सुन रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा ईश्वर राज जी। यू जेन लोबो नाम से हमारे बीच में महानुभाव हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। हेलो। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, आपकी आवाज आ रही जी। हाँ, मैं मैंगलोर कर्नाटका साउथ इंडिया से है। मैं बोल रहा हूँ, जो काउंटिंग में करेंसी काउंटिंग हो रहा है, ऐसा ही हमारा वीएम पैट काउंटिंग मशीन पे काउंट करके टैली करना चाहिए। ठीक है हेलो, जी। समझ गया क्या बोला? हाँ, आपकी बात समझ में आई। आपने वही बोला जो सभी लोग बोल रहे हैं। या करेंसी नोट मशीन पे काउंट कर रहा है ना, ऐसा ही वीवीएम पैट पेपर भी काउंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद। थैंक ईश्वर यू। राज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हिदायत परमार साहब हेलो। है। हिदायत, हाँ जी, हाँ ईश्वर राज जी, आवाज आ रही है प्लीज।
हम्म। हेलो आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। सर, similar to the person who had expressed his opinion that all the knowingly or unknowingly, hello, able to hear me, sir? Yeah, you are audible to us. Go ahead. Knowingly or unknowingly, the votes registered in the VVPAT are as good as ballot paper itself. Hello, Yes, yes. Please as go good as ahead. You are audible. as good as ballot paper itself. So it is very, very important. If the election commission slogan says every vote counts, then all the vote registered in the VVPATs should be counted. For this, my suggestion is that, like in a previous case of Jessica Lal, where the person against whom the complaint was made, he was acquitted. Immediately there was a hue and cry all over the country, and NDTV had launched one SMS drive to express their opinion, where the same evening the Supreme Court had ordered for reopening the case, and he was convicted later. Similar way, in this case also, we should launch one SMS drive for people to express their opinion with regard to VVPATs. That VVPATs, all the VVPATs should be counted. And this has to be done immediately through ADR or any other, through Federation of Forum for Fast Justice. ओके, हमारे बीच में आदरणीय संतोष पाल जी जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण जी, जो क्वेश्चंस थे, कुछ बातें थी, डिस्कशन थी, तो उसको पूरा कर लिया जाए। सीनियर एडवोकेट संतोष पाल जी जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम में। प्रवीण जी, प्रवीण जी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बीच हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि आप कोई क्वेश्चंस रखना चाहते हैं आदरणीय संतोष पाल जी के समक्ष, तो आप लोग अपनी बात रखें ईवीएम से संबंधित। सर, इसी चीज का, जैसे इन्होंने इंग्लिश में कहा, इस चीज का थोड़ा सा हिंदी, क्योंकि उनका साउंड उतना क्लियर नहीं था, कि हम किस प्रकार से इस चीज के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम भी चाहेंगे कि बैलेट पेपर के माध्यम से हो, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? अभी ऐसा हो गया है कि 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद हम अभी है वही ईवीएम, जो 5 ईवीएम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, अभी 5% हो गया। 5% की स्क्रूटनी होगी वीवीपैट की। तो ये सिचुएशन में हम आज हैं। ये कार्रवाई कुछ रिव्यू डाला गया है, वो अपने टाइम पे डिसाइड होगा। पर ये जो प्राइमरी प्रॉब्लम जो है, ये ईवीएम का, ये अभी मेरे हिसाब से ये इलेक्शन के बाद ही इसका सुलझाव हो सकता है। जो भी नया डिस्पेंसेशन आएगा या जो भी है, वापस संघर्ष करना पड़ेगा। वापस ये ईवीएम की जो लिमिटेशंस है और उसकी चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इतनी हाई है, ये दोबारा लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के हाथ में होगी। मेरे हिसाब से अगर कोई नया डिस्पेंसेशन आया, क्योंकि सारे पार्टीज इनके खिलाफ थे। ये 2 बार आ चुके हैं इधर सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका सुलझाव अभी पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ही होगा। और मेरे हिसाब से मैं कांग्रेस की न्याय पत्र देख रहा हूँ, उसमें देयर इज ए प्रॉमिस किया गया है कि 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होगी अगर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो। तो ये सब अभी ये 4 जून के बाद ही इसका कुछ
होगा अभी 4 जून तक। ये जो अभी जो एक पार्टिसिपेंट ने अभी कहे हैं that there should be a campaign, that there should be 100% वीवीपैट, वो जरूर कर लीजिए। पर अभी ये इलेक्शन कमीशन जो उनकी जो रोल है आज तक, जो बिल्कुल खराब रोल किया है, और कोई भी सैंक्टिटी नहीं है, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है इनके ऊपर। वो करेंगे नहीं करेंगे सबको पता है, ये करने वाले हैं नहीं। तो संघर्ष जरूर करिए, पर मेरे हिसाब से 4 जून के बाद ही इसका जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से चलेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला वो तो खत्म हो गई है। देयर इज नथिंग मोर टू बी डन देयर। सर इसी प्रकार से इसी में कंटिन्यूशन सर, जैसे हमारे अभी वर्तमान में विपक्ष थोड़ा सा कमजोर मुझे ऐसा लगता है, तो क्या विपक्ष के इसका भी कोई कहीं ना कहीं प्रभाव है जो हमारा नहीं हो पा रहा है बैलेट पेपर सिस्टम? क्योंकि आवाजें तो उठ रही हैं, पिटीशन जो है वो आ रही है, मतलब चर्चाएं तो आना चालू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सर इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? देखो, ऐसा है कई जगह अभी, अगर आप सोशल मीडिया में देखें, ट्विटर अकाउंट्स और इंस्टाग्राम में बहुत सारी मैल फंक्शनिंग ईवीएम्स जो चल रही है। उसकी जो डिफेक्ट्स है, उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रही है, वो सब सोशल मीडिया में ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। एंड इसमें एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर है ईवीएम्स पे। और कई जगह ईवीएम्स ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये लॉक होगा, उसमें सीसीटीवी कैमरा होगी, ये है वो है, सब कुछ फ्लाउट हो रहा है। तो अगर कैमरा के बारे में बात करें तो बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कैमरा बंद था। तो ये सब इट इज मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इलेक्शंस विद अ कंप्लीट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड इसमें वी विल हैव टू वेट थ्रू दिस प्रोसेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आई डोंट नो अभी एक आदेश दिया गया है कि वो जो फॉर्म 16 या 17 है वो क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दैट विल शो कितने वोटें डली है। even that the election commission is not giving figures. So it is not only ये जो ईवीएम की इश्यू है, बहुत फ्रंट्स पे ये जो इलेक्शन कमीशन की जो रोल है, बहुत इट इज पार्टिजन एंड इट इज इंस्पायरिंग। कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रही है। जी धन्यवाद पाल साहब। हमारे बीच में प्रिंसिपल हैं लॉ कॉलेज पटना के श्री शरीफ साहब जुड़े हुए हैं। शरीफ साहब, आवाज आप आ रही है? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, सुन पा रहे हैं तो। जी आवाज आ रही है। जी, आज का जो टॉपिक है वो हाँ जी। ईवीएम को लेकर के है कि ईवीएम कितना रिलायबल है हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और जो वीवीपैट और ईवीएम का जो डिबेट लगातार चल रहा है, तो इस विषय पर क्या आपके विचार हैं? और हमारे बीच में आदरणीय संतोष पाल जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो भी अपने विचार रख रहे थे। तो कृपया यदि कुछ आप बात अपनी रखना चाह रहे हैं इसमें। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो ईवीएम है, एक डेवलपमेंट का एक स्टेज है। किसी सिस्टम में जो डेवलपमेंट्स होते हैं आप उसको रोक नहीं सकते हैं। बैलेट पेपर से इलेक्शंस होते थे, और वो इलेक्शन से एक मोड था अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। लेकिन जमाने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, तो उसके साथ आदमी को तालमेल मिलाकर चलना होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। उस जो 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 ईवीएम आया था बहुत अच्छी चीज थी। पहले कितने कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स होती थी, मैन्युअली उसको काउंट करना बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस सिस्टम में जो एक नया बदलाव आता है उसको हम कैसे लेते हैं। और अगर उसमें देखिए, जो भी ऑफिसर्स होते हैं जो इसके इंचार्ज होते हैं, नो डाउट इलेक्शन कमीशन है या जो भी ऑफिसर्स इंचार्ज में होते हैं, तो कहीं ना कहीं
जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं उनसे उनको तालमेल बना के चलता पड़ता है। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, ये सबके साथ हो, किसी की भी सरकार हो। तो उसको हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम में जो बदलाव आया है, ईवीएम बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन उसमें जो धांधली सामने आई, जिस तरह से जैसे पिछली बार पटेल जी ने बताया था कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनीज है बने कितने और सरकार को कितना पहुंचा, बाकी ईवीएम कहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आखिर उसका मिसयूज हो रहा है। इस मिसयूज को कैसे रोका जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब भी बदलाव आया है तो हम पीपुल ऑफ द इंडिया जो जो इलेक्टोरेट्स हैं उन्हीं के माध्यम से बदलाव आता है। दूसरा जो सिस्टम है कोर्ट है, लेकिन कोर्ट भी बहुत जगहों पे देखा जाता है कि कोर्ट भी कैलकुलेटिव हो जाता है। जो जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से बहुत बार कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो निराशजनक होते हैं। जो लगता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होकर के कभी किसी पक्ष में कभी किसी पक्ष में। तो इसलिए ईवीएम तो है अच्छी चीज, लेकिन उसका सही यूज होना, सही वोटिंग करा करके, जैसे भी एक वीवीपैट की 100% मिलान की बात आई, अभी एक रिसेंट बात आई कि जो डाटा है ये तो बहुत ही अद्भुत चीज होती है कि आप विद इन 2-3 आवर्स ही पूरे देश के जो भी जहां इलेक्शंस होते हैं उसके डाटा को आप कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अपलोडिंग में जो एक इनऑर्डिनेट डिले हुआ तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न हुआ। तो जो जो भी उस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कहीं कुछ तालमेल है, कहीं कुछ घपला हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसको कैसे चेक किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में। तो मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ईवीएम का जो इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से चाकू बनाया गया, ठीक है, चाकू का एक पर्पस था काटना, तो उससे हम सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। उसमें चाकू का क्या कसूर है? वो जो हैंड है जो हैंडल कर रहा है उसका कसूर है। तो जो लोग भी इस सिस्टम में ईवीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर वो करेक्ट हो जाए, और वो क्या है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बच्चे पढ़ के जाते हैं उनका जो मोरल वैल्यूज है, इस तरह से मोरल वैल्यूज गिरा हुआ है कि वो जाकर के सरकार के हो जाते हैं। हम तो नहीं नहीं पब्लिक सेंट्रिक है ना। मैं आई विल जस्ट इंटरप्ट यू हियर। पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ये उन्नति प्रोग्रेस के प्रोडक्ट है ईवीएम। अगर उन्नति और प्रोग्रेस की प्रोडक्ट है, हाँ, दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस जो है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, यूएसए, नेदरलैंड्स, ये सब क्यों ईवीएम नहीं यूज कर रहे? जो इतने टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ये प्रश्न आप खुद पूछ के समझने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, क्योंकि मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें आई विल टेल यू। क्योंकि जब ये जो जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट में ये प्रश्न उठा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जर्मनी के, उन्होंने पूछा गवर्नमेंट से, ये जो ईवीएम मशीन जो है हमारे सामने, आपको कैसे पता चलेगा ये मैनिपुलेटेड है या नहीं? तो उसका जवाब था कि टेक्निकल एक्सपर्ट आके देखने से, हाँ, उसकी सोर्स कोड पढ़ने से, उसकी पूरी जांच करने से तब पता चलेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है। If you have a source code which says after the 7th vote it will go to X party and Y party and nobody knows the source code, then your electoral process is rigged and nobody can find out. कोई भी पता नहीं कर सकता है। इसलिए दुनिया के सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसकी जो मैनिपुलेशन है कोई भी पता नहीं चलेगा। 100 साल बाद या पता नहीं कब ये सब ढूंढ निकालेंगे, इधर जांच उधर जांच, फिर आपको पता चलेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है। By that time your election is already stolen. So to say that DVM is a product of development, yes, it is a technological advancement, but there is a reason क्यों ये जो एडवांस कंट्रीज इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे और बैलेट पेपर से चुनाव लड़ते हैं। जापान जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज है, अपनी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आप पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी ये जो हो रही है, ये दबाव वो पार्टी को जा रही है, ये वो दबाव ये पार्टी को जा रही है। Is it a mistake of the EVM, or is it a rigging of the what we call the code, the source code? Nobody knows.
You will not know, I will not know, the court will not know, nobody will know. ये एक सबसे बड़े समस्या है, और ये लोकतंत्र की ये एक ऐसी चीज है कि इट इज डिमोलिशिंग डेमोक्रेसी. To say that this is the answer, no, I will not agree with you. And that is precisely the reason all advanced democracies are not using EVMs, because they know the pitfalls. अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो फोन है, अगर मैं 2 साल पहले आपको ये बता दूं कि मैं ये बंद कर रहा हूँ फोन, फिर खत्म हो गई, कोई रिगिंग, कोई मेरी सुनवाई, कुछ नहीं होगी. पर आज की टेक्नोलॉजी में अगर मैं ये फोन बंद करूं, फिर भी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड कर रही है, बिकॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड पेगासस, एंड इट इज ट्रांसमिटिंग इट टू, और एक जुरिसडिक्शन को ट्रांसमिट कर रही है. नॉट ओनली दैट, ये वॉइस भी नहीं रिकॉर्ड कर रही है, इसके ऊपर इसका ऑन स्विच ऑफ पोजीशन कैमरा भी रिकॉर्ड कर रही है. आप विश्वास नहीं करेंगे 2 साल पहले, पर आज ये जो सॉफ्टवेयर है जो लगातार इस्तेमाल किया गया है बहुत सारे डिक्टेटरशिप्स में, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. तो इतनी एडवांसमेंट के सामने ये जो ईवीएम आप कह रहे हैं कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, आई विल नॉट बिलीव इट. if a phone can be manipulated to such an extent, ये बंद करने के बाद भी मेरी वॉइस है जो टेलीवेव में ट्रांसमिट कर रही है, जो इसमें कैमरा चला हुआ है ऑन अ स्विच ऑफ पोजीशन, मैं बोल रहा हूँ दोबारा. ये है टेक्नोलॉजी. तो ये पता करने से पहले आप ये पता, जांच, साइंटिफिक इंक्वायरी सब करने के बाद, उसके बाद उतने में एक सरकार जिसको डेमोक्रेसी की सैंक्शन नहीं मिली है बाय मेजॉरिटी वोट, वो आपको शासन करेगा. ये है सबसे बड़ी डेंजर. इसलिए हमारे जो के.एम. मुंशी थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कहा ये कभी भी शक नहीं होना चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस. ये शक उस जुरिसडिक्शंस में होती है जहां डिक्टेटरशिप्स होते हैं, जहां बनाना रिपब्लिक्स होते हैं, जहां लोकतंत्र की एक सेम्बलेंस ही होती है, सच्ची का लोकतंत्र नहीं होते, ऐसे कंट्रीज में शक होती है इलेक्शन प्रोसेस. और ये शक एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, एज शेक्सपियर ने कहा, the Caesar's wife should be above suspicion. That is the situation for an election. So I am of the view you cannot have 0.00001% doubt in an electoral system. And if it is manipulated, it should be visible to the ordinary layman. बैलेट पेपर में अगर उसमें डिब्बे में 100 गए, कोई भी 2 दिन के बाद वो डब्बा खोल सकते हैं, वो डब्बा में बता सकते हैं कितने वोट इधर गिरे, कितने वोट उधर गिरे, कितने डिफेक्टिव वोट्स हैं. सर पर आपकी ये बात जो है, इट विल नॉट हैपन इन ए, यू वोंट इवन नो, आप जान भी नहीं पाओगे क्या हुआ. सर आपकी बात हो गई. हाँ जी, मैं कुछ ऐड करूं इसमें. हाँ जी. जी, मैं ये कह रहा था कि एक प्रश्न हम अपने आप से पूछें, ये जो ईवीएम मशीन आई थी, और अगर 100% इसका सही इस्तेमाल हुआ होता, तो क्या आज ये प्रश्न हम करते पब्लिक में या सरकार से? नहीं करते. लेकिन नहीं, कहीं इसमें मैं आई विल इंटरप्ट यू राइट नाउ. आपको पता चलेगा कि ये 100% सही चल रहा है या गलत चल रहा है, या 20% गलत चल रहा है, आप जानते भी नहीं है. आपके पास सोर्स कोड नहीं है. यू डोंट हैव द सोर्स कोड. ये सोर्स कोड कहीं अमेरिका में बनाया गया है. उसमें क्या है सोर्स कोड? उसमें ये सोर्स कोड में ये लिखा हर 7वां या 10वां इस पार्टी को जाएगी या उस पार्टी को जाएगी. आपको तो पता ही नहीं है, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा. हमने डिस्क्लोज करने को बताया, वो भी नहीं हुआ. नहीं, देखिए बात यह है कि अगर किसी देखो, एक ही पार्टी, आप जांच भी नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं सर, क्या, ऑन व्हाट बेसिस विल यू से दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग? नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम एक पार्टी की बात करें कि एक ही पार्टी उस ईवीएम का इस्तेमाल करेगी और उसी को 5वां या 6ठा या जो भी वोट उसी को जाएगा, तो बात समझ में आती है. जब 2014 में इलेक्शन हुए
और 2019 में हुए। 2014 में भी एक कहीं ना कहीं मरमरी हो रही थी कि इसका मिसयूज हो रहा है। 19 में तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर ये बात है जो लग रहा है, तो 19 के बाद हम लोग क्यों नहीं इस पे बढ़े? और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज चिल्ला रही हैं ईवीएम को लेकर के, उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया गया था? वो कहती कि वो हम लिया सारी गया, पॉलिटिकल वो पार्टी लिया गया। इलेक्शन फाइट नहीं वो करेंगे वो अगर वो ईवीएम से होकर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है। 19 पॉलिटिकल पार्टी, 19 नहीं, 21 पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए। ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं गए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट गए। और ये बताया गया तब, उस टाइम मुझे पता नहीं उस टाइम जर्मन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया या नहीं, पर जब आया सारे डेवलप्ड वर्ल्ड तो उठ गए, पर हम उठे नहीं है। सारे तो उसमें डेवलप्ड सर वर्ल्ड, मतलब कि ये था एंड ना, आई एम टेलिंग यू। आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, ये सारे क्यों नहीं इस्तेमाल है? आप बताइए। नहीं सर सही बात है, लेकिन आप ये बताएं कि क्यों जितनी नहीं है? एडवांस आप कंट्रीज हैं। आप जरा सोचा है, आप सोचा है? नहीं नहीं, क्योंकि जो आप अगर आप वो जर्मन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजमेंट आप पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा इसकी इतनी फोरेंसिक इंक्वायरी हुई है ये ईवीएम मशीन की, इतनी डिटेल में, कि उसमें ये स्थापित किया गया है कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये नहीं मैनिपुलेटेड हुआ या नहीं हुआ। मैनिपुलेटेड हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, पर आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अभी जो अभी सिस्टम है जिसमें जिसमें आपको, आम आदमी को, और वही है जर्मन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, अगर आम आदमी को ये नहीं पता कर सकता है तो वो लोकतंत्र नहीं है। नहीं, उसमें देखिए नहीं सर दो चीज हम ये कहना चाहेंगे। एक मिनट हमारी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए जितनी भी आपने नाम लिया डेवलप कंट्री के, यूएसए हो, जर्मनी हो, हमें नहीं लगता कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग जैसे इशू सामने आते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कहा कि उसको चेक करने का एक तरीका है कि जो हम ईवीएम में जाकर के वोट कास्ट करते हैं, उसकी एक पर्ची निकले, है ना, अब उस पर्ची को वहां पे एक बॉक्स रखा हो और उसमें गिरा दिया जाए, तो बिल्कुल उसको वो आप क्यों काउंट नहीं करें। मान रहा है? वो जो एक सिंपल सी सिस्टम है, वो ही मैं बताया, जो वीवीपैट है, हाँ, वो सबसे लास्ट आना चाहिए। आप अगर आप बटन दबाएं तो वो कंट्रोलिंग यूनिट में रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके बाद वीवीपैट से वो स्लिप आना चाहिए। और दूसरी, सारे वीवीपैट की जांच होनी चाहिए। वो क्यों नहीं मान रहा है? आप बताइए क्यों नहीं मान रहा है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में तो गए हैं नहीं ना, अब नहीं सुप्रीम नहीं नहीं कोर्ट को नहीं चाहिए कि नहीं उस पे। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की इरादा या इंटेंशंस मैं पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं मान रहे? वीवीपैट 100% की जांच तो सिंपल सी बात है, क्यों नहीं हो रही है? आप नहीं, सोचिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये सुप्रीम कहे कोर्ट कि किया आपको नहीं, सुप्रीम कोर्ट किया, मैं नहीं तो बहस किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने डिसीजन दे दिए। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं मान रहा है? अब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही, इसका मतलब कि सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि वो तो 100% सरकार की बात कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट तो इंस्टीट्यूशन है वो देखो, सरकार की तरफ की बात कर रहे हैं। नहीं, तो इलेक्शन उसमें बस यही कमीशन रास्ता है। मेरी मेरे नहीं नहीं, मैं एक चीज बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन इज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी, टेक्निकली एंड इन थियरी। क्योंकि एक इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते अनलेस लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, यू नीड 2/3 majority in parliament to remove an election commissioner. It is supposed to act as an independent body. तो मैं आपसे एक अपॉलॉजी लेना चाहता हूँ, मेरा फ्लाइट की लास्ट कॉल आ गई है एंड आई एम प्रोसीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिबेट। ऑल द वेरी बेस्ट। जी थैंक धन्यवाद। यू। जी आदरणीय संतोष पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू वेरी तो मच फॉर इनवाइटिंग। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे बीच में सीनियर अधिवक्ता बस सुप्रीम कोर्ट के श्री संतोष पाल जी, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया और आगे भी कार्यक्रम में
अपना समय देंगे इस विषय पर जब भी चर्चा होगी। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़े और हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हैं, जो इस विषय पर अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 5 से 10 मिनट में अपना ये प्रेजेंटेशन मतलब वो कर दें, कंक्लूड कर देंगे। जी वीरेंद्र कुमार ठक्कर यस की सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। वेल इसमें मुझे उस पर को होस्ट बना दीजिए आप। लैपटॉप पर आए हैं और लॉग इन फ्रॉम 2 डिवाइसेस। को होस्ट मैंने आपको एक में बना दिया है। उस पे एक मेरा वो लैपटॉप भी है। एक्चुअली अच्छा, प्रेजेंटेशन मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ और आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई मोबाइल फोन, क्योंकि इसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, आप को होस्ट बन गए हैं, प्लीज गो अहेड। हाँ यस ओके। ओके सो मैंने शेयर कर दिया। आई होप आफ्टर नेटवर्क डिले ऑफ 2 seconds इट विल अपीयर दिस प्रेजेंटेशन। मेरा दिखाई दे रहा है? हाँ।